The last class we was talking about the nutrition, and we have already talked about the type of nutrition and definition of nutrition, what is the nutrients, and firstly we was talking about autotrophic nutrition. We have already looked about the types of autotrophic nutrition, that the autotrophic nutrition can be divided into two types. First may be autotrophic nutrition and second will be chemoautotropic nutrition. Means if the organism is autotroph and it is utilizing light, then it will be photoautotropic, and if the organism is autotroph and utilizing chemicals for the nutrition, then it will be chemoautotroph. Now we are talking about the second part, heterotropic nutrition. Heterotropic nutrition. In the condition of heterotropic nutrition, we have discussed about the definition that if the organism is depending on the others made food for the nutrition, then it will be called heterotropic nutrition. Now what are the types, what are the conditions in heterotropic nutrition? We have to talk. Firstly, we are taking the saprotropic condition. Firstly, we are talking about saprotropic nutrition. The type of nutrition, the type of heterotropic nutrition, in that any organism depending on dead and decaying material. The condition of heterotropic nutrition, in that any organism depending on dead and decaying substance for the nutrition, then it will be called saprotropic nutrition. यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म मरी हुई और सड़ी गली चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन. मीन्स किसके ऊपर डिपेंड होगा? डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड होगा, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड होगा या सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड होगा. Such type of organism in that saprotropic nutrition is present, then these are called saprotrophs. ये क्या कहलाते हैं? Saprotrophs की कैटेगरी में आते हैं. The type of organism which are having saprotropic nutrition are called saprotroph. Saprotroph के बाद में हम सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं. It is parasitic condition. Parasitic nutrition. ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द टाइप, द कंडीशन ऑफ द हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन दैट एनी ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन होस्ट प्लांट और एनिमल बॉडी फॉर द न्यूट्रिशन. मीन्स द ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी होस्ट प्लांट बॉडी या किसी होस्ट एनिमल बॉडी के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहता है, तो ऐसा न्यूट्रिशन कंडीशन क्या कहलाती है? पैरासाइटिक कंडीशन कहलाती है. Means the organism will depend on the host plant और animal. यानी कि host plant भी हो सकता है और host animal भी हो सकता है. In such condition, these type of organism are called parasites. These type of organism are called parasites. यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कंडीशन पाई जाती है, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं. पैरासाइट जो है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? होस्ट प्लांट और एनिमल के ऊपर डिपेंड रहेंगे. सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैरासाइट. यहाँ पर पैरासाइट की अगर बात करें तो ये दो टाइप की कंडीशंस में अवेलेबल हो सकते हैं. पैरासाइट्स ये बॉडी के आउटर पार्ट पर डिपेंड हो सकते हैं, यानी कि बॉडी के जो भी प्लांट या एनिमल बॉडी है उसके बाहरी हिस्सों पर डिपेंड हो सकते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, और ये बॉडी के इंटरनल क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड हो सकते हैं. वो इंटरनल क्लाइमेट या तो प्लांट का हो या एनिमल का हो, किसी का भी हो सकता है. तो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडिंग ऑन द होस्ट प्लांट और बॉडी आर कॉल्ड पैरासाइट, बट देयर आर टू कंडीशंस. If the parasites are depending on the outer climate of the body, outer part of the body, then it will be called ectoparasite. Ectoparasite. These are called ectoparasite. यानी such type of parasites means such type of parasites will depend on the outer regions of the body for the nutrition. यानी nutrition के लिए outer regions के ऊपर depend रहेंगे. These
type of parasites will depending on the internal climate of the organism, internal climate of the host. तो इनको बोलेंगे हम एंडोपैरासाइट, इनको हम क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट्स. The type of parasites which are depending on the outer regions of the body, then these are called ectoparasites. When the parasites depending on the inner climate of the organism of plant or animal host, then these are called endoparasite. Here the word ecto means outside, here the word endo means inside. Okay. If we are talking about examples, then you can say like leech means jonk, mosquitoes मच्छर, ये सभी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बॉडी के आउटर क्लाइमेट्स के ऊपर डिपेंड रह करके ब्लड को सक करते हैं, जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं, तो इनको हम बोलेंगे एक्टोपैरासाइट कैटेगरी में. इसी तरीके से यहाँ पर प्लांट का एक एक्टोपैरासाइट की कंडीशन की हम बात करें तो कसकटा की हम बात करते हैं, कसकटा, अमरबेल, तो ये अमरबेल भी एक पैरासाइट ही है. और अगर एंडोपैरासाइट्स की बात करते हैं तो जितने भी वायरस बैक्टीरियाज हैं, वायरस एंड बैक्टीरियाज, ये सब किस में आ जाएंगे, आपके एंडोपैरासाइट्स में आ जाएंगे, क्योंकि इनको न्यूट्रिशन के लिए बॉडी के इनर क्लाइमेट्स की रिक्वायरमेंट होती है. यहाँ पर हम थोड़ा सा वायरस के बारे में अगर डिस्कशन करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वायरस, देन वन थिंग इज नेसेसरी टू लर्न अबाउट दिस. व्हाट इज नेसेसरी? that virus is the connective link, virus is the connective link between living and non living. मीन्स वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक की कैटेगरी में आता है. क्यों आता है कैटेगरी में? क्योंकि वायरस जब किसी भी होस्ट बॉडी के अंदर होता है, देन इट विल बी बिहेव लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर वायरस किसी भी बॉडी, होस्ट बॉडी के अंदर होता है, देन इट विल बिहेव लाइक द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इफ इट इज आउटसाइड ऑफ द होस्ट बॉडी, देन इट विल बिहेव लाइक द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. और ये अगर किसी भी होस्ट बॉडी के बाहर पड़ा हुआ है, नॉर्मल क्लाइमेट में, फेवरेबल कंडीशंस में नहीं है, देन इट विल बिहेव लाइक द नॉन लिविंग थिंग. एंड इफ इट इज इन suitable climate, then it will behave like the living things. Means the virus will connect the living and non-living organism, non-living and living things, then it will be called connective link between living and non-living. तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि वायरस अगर इसके फेवरेबल क्लाइमेट में, फेवरेबल कंडीशंस में नहीं है, देन इट विल नॉन लिविंग. और अगर ये फेवरेबल कंडीशंस में है, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन सभी के लिए, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लिविंग थिंग की तरह काम करता है. ओके. Firstly, we are talking saprotrophic nutrition. It means that these type of organisms are depending on the dead and decaying material for the nutrition condition, and such type of organisms are known as saprotrophs. Secondly, we are talking about the parasitic condition of the nutrition. In that, the organism will depend on the host plant and animal body. Such type of organisms are called parasite. And these parasites, if depending on the outer regions of the any organism host body, then these are called ectoparasite, like the leech, mosquitoes, etc., etc. And if the parasites are depending on the inner regions of the host body for the nutrition, then these are called endoparasite, like virus and the bacteria. If we was taking virus, then this is the connective link between the living and non-living. Why? If it is in non-favorable conditions, then it will behave like the non-living thing, and if it is in favorable conditions, then it will behave like the living things. After it, we are taking a next type of nutrition of heterotrophic part, then it is holozoic nutrition. It is next is holozoic nutrition. Holozoic nutrition. अगर थोड़ा सा याद करने के बेस पर हम इसके बारे में बात करें तो होलो एक वर्ड लगता है. होलो मतलब होल, अगर थोड़ा सा माइंड में याद रखने, होल होल यानी कि कई सारों को मिला करके एक साथ बोलें, यानी कि ये जो नेक्स्ट टाइप का न्यूट्रिशन है हमारा, होलोजोइक न्यूट्रिशन. very important type of nutrition, holozoic nutrition. Such type of nutrition occurs in 5 step. ये जो न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन अकर्स इन 5 स्टेप. ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होगा. अब 5 स्टेप्स की अगर हम बात करें, देन द फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन. सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन. Third stage is absorption.
then assimilation, and after that the last step is egestion. These are the 5 steps in which holozoic nutrition will be completed. ये वो 5 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. इन द मैक्सिमम एनिमल्स होलोजोइक टाइप ऑफ कंडीशन इज प्रेजेंट. This nutrition will be completed in 5 steps. The first step is ingestion, then digestion, then absorption, then assimilation, then egestion. You have to repeat these again and again. Ingestion, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay. Then if we are talking about the first step, first condition, ingestion. यहाँ पर अगर हम फर्स्ट को लास्ट को देखें तो दोनों सेम है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है. इंजेशन और इजेशन, इन यानी अंदर, इजेशन यानी बाहर. ठीक है. यानी यहाँ पर जो है इंजेशन जो फर्स्ट कंडीशन होगी, इसमें फूड को अंदर लिया जाएगा ओरल कैविटी के, माउथ के थ्रू फूड को बॉडी के अंदर ले जाया जाता है. मीन्स इनटेक ऑफ फूड, द कंडीशन ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी कि फूड को बॉडी के अंदर लेने की जो कंडीशन होती है वो क्या कहलाती है? इंजेशन कहलाती है. इट इज द इनटेक ऑफ फूड, मीन्स इट इज द कंडीशन इन दैट फूड इज इनटेकिंग इनटू द ओरल और बकल कैविटी थ्रू द हेल्प ऑफ द माउथ और द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी. देन द सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन. सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन. डाइजेशन मीन्स बॉडी कैन नॉट यूटिलाइज द फूड एज इट इज इन द कंडीशन. यानी कि जैसे ये फूड है, अगर जो भी हम फूड ले रहे हैं, बॉडी की सेल्स जो है उसको एज इट इज कंडीशन में यूटिलाइज नहीं कर पाती है. सो द फूड मस्ट बी ब्रेक डाउन इनटू सम पीसेस और मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म दैट बॉडी कैन यूटिलाइज इट. फूड को उस कंडीशन में, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है जिस फॉर्म में कि बॉडी इसको क्या कर पाए? यूटिलाइज कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए. देन दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज नेसेसरी. इसमें क्या होगा? द लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स, द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स will be converted into smaller and simpler food particles. The process of the conversion of large and complex food particles into smaller and simpler food particles by the help of enzyme are called डाइजेशन. यानी ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर लार्ज और कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉलर और सिंपलर फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर दिए जाएं. और यहाँ पर हेल्प कौन करेगा? यहाँ पर हेल्प करेगा एंजाइम. एंजाइम क्या है? इनके बारे में हम जब डाइजेशन स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो वहाँ पर बात करेंगे एंजाइम क्या है. एक हल्का सा डिस्कशन अगर बात करें, एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट. यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा. Enzymes are biocatalyst. Catalyst is a word of chemistry. Catalyst जो है वो केमिस्ट्री का वर्ड है. Catalyst means the type of chemicals which are required to control the speed of reaction. यानी कि रिएक्शन की स्पीड, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं उन केमिकल्स को हम बोलेंगे कैटलिस्ट. These will not participate into the chemical reaction and will not form any product. ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाते, बट इट विल ओनली कंट्रोल द रेट, द स्पीड ऑफ द रिएक्शन. ये केवल और केवल किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करते हैं. अगर ज़्यादा स्पीड है, हम उसको स्लो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कैटलिस्ट काम में आ सकते हैं. कम स्पीड में रिएक्शन चल रही है तो उसको अगर स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर हम इसका कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं. सम कैटलिस्ट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी. कुछ जो कैटलिस्ट होते हैं वो ह्यूमन और प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स बॉडी में पाए जाते हैं. सच टाइप ऑफ कैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम. हेयर द वर्ड बायो प्रीफिक्स इज कनेक्टेड विद द कैटलिस्ट. यहाँ पर कैटलिस्ट के साथ में बायो वर्ड जोड़ा हुआ है. और इंट्रोडक्शन में हम बायो की बात कर चुके हैं. बायो मतलब होता है लाइफ. यानी ऐसे कैटलिस्ट जो किसी लाइफ मतलब किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे तो फिर उनको हम क्या बोलेंगे? एंजाइम बोलेंगे.
What is the enzyme which was the first enzyme discovered separated? ये हम जब डाइजेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, इसकी फिजियोलॉजी जब पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पर इतना सही काफ़ी है। डाइजेशन इज द प्रोसेस इन दैट द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स विल कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर एंड सिंपलर फूड पार्टिकल्स बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। व्हाट आर एंजाइम्स? Enzymes are the biocatalyst. Enzymes are the biocatalyst. Catalyst mean the type of chemicals which are required to control the rate of reaction, to maintain the rate of reaction. इसको कम या ज़्यादा करने में, rate of reaction को, speed of reaction को करने के लिए काम में लिए जाते हैं catalyst. And such type of catalyst, some type of catalyst present in the organism body, these are called enzymes. अब क्या होगा? यहाँ पर जो फूड है वो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है जिसमें कि उसको हमारी बॉडी, हमारी सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर पाए। देन जब एब्जॉर्प्शन के लिए चीज है तो उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। देन द एब्जॉर्प्शन विल बी स्टार्टेड। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि फूड का डाइजेशन जिस प्लेस पर, जिस लोकेशन पर फूड का डाइजेशन हुआ है, फूड का कन्वर्जन हुआ है स्मॉलर और सिंपलर पार्ट में, तो वहां से क्या किया जाएगा? इसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। और एब्जॉर्ब करने के लिए पर्टिकुलर पार्ट में पर्टिकुलर स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। जब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो उसमें हम देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है जो कि विली के नाम से जाने जाती है, और ये क्या काम करती है? फूड को एब्जॉर्ब करवाने का, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन करके फूड को एब्जॉर्ब करके, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब करके उसको किस में डाल दिया जाएगा? ब्लड्स के अंदर डाल दिया जाएगा। ब्लड के अंदर डालने के बाद फिर क्या होगा? इसका एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल इनटू द कंप्लीट सेल्स ऑफ द बॉडी। यानी कि डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को जब कंप्लीट सेल ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन बोलेंगे। और आप जानते हो हमारी बॉडी में सबसे बड़ा जो ट्रांसपोर्टर है वो ब्लड होता है। ठीक है, और लास्ट प्रोसेस होती है इसकी ईजेशन। ईजेशन मीन्स थ्रोन आउट ऑफ द अनडाइजेस्टेड मटेरियल। बॉडी के बाहर जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल है, उसको बॉडी से बाहर निकालने की जो कंडीशन होगी वो क्या कहलाएगी? ईजेशन कहलाएगी। दीज आर द 5 स्टेप्स इन दैट द होलोजोइक न्यूट्रिशन विल बी कंप्लीटेड। फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, मीन्स इनटेक ऑफ द फूड। सेकेंड इज डाइजेशन, मीन्स द कन्वर्जन ऑफ द फूड इन फ्रॉम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स condition to the smaller and simpler condition by the help of the enzyme. Third is absorption, means the digested food will be absorbed by the cells of the body or the part of the body. Then the assimilation, then digested food material will be transported to the whole cells of the body, and after that the undigested and waste material of the body will be excreted, thrown out of the body. This is the holozoic nutrition. After the holozoic nutrition, a special type of condition is there. You have already read about this, herbivorous, carnivorous and omnivorous. These are the 3 conditions. Already you have read about this. Herbivorous means such type of organisms which are taking vegetables and grass, वेजिटेबल एंड ग्रास फॉर द न्यूट्रिशन, यानी कि वो केवल घास और वेजिटेबल्स खाते हैं। कार्निवोरस, सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विल टेक फ्लैश और मीट, यानी कि मांस खाएंगे, जो एनिमल्स हैं उनको लेंगे। और ओमनिवोरस टाइप ऑफ कंडीशन इज इन दैट ऐसे ऑर्गेन जो है वो वेजिटेबल और ग्रास भी लेंगे और फ्लैश और मीट भी लेंगे, यानी दोनों ही अपने न्यूट्रिशन में लेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जांपल जैसे कि आप काऊ है, डियर है, हिरन वगैरह। कार्निवोरस में लोइन वगैरह आ जाएगा, और ओमनिवोरस में सबसे बड़ा एग्जांपल होता है ह्यूमन। ह्यूमन जो है वो ओमनिवोरस है, ये वेज भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है। ठीक है, एक कंडीशन की और बात करते हैं हम यहाँ पर, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इस पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी चीज़ के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें 2 ऑर्गेनिज्म या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। कुछ रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं जिनमें एक को फ़ायदा एक को नुकसान होता है, कुछ ऐसी होती है जिसमें दोनों को ही फ़ायदा होता है, कुछ ऐसी भी हो सकती है जिसमें दोनों को नुकसान हो। लेकिन यहाँ पर जब हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो सच टाइप ऑफ रिलेशनशिप विल बी प्रोड्यूस बाय द शेयरिंग ऑफ शेल्टर एंड फूड।
यानी कि अगर दो ऑर्गेनिज्म आपस में साथ में रह रहे हैं और वो शेयर कर रहे हैं शेल्टर और फूड को, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप विल बी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हम बात करें लाइकेन के बारे में। लाइकेन आर द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऑफ एल्गी एंड फंगस। एल्गी एंड फंगस, सॉरी फंगस। इसमें क्या होता है, फंगस जैसे राइजोपस है, ये इस टाइप से है और इसके ऊपर एल्गी प्रेजेंट है। तो एल्गी क्या काम करेगी, एल्गी विल मेक द फूड, प्रिपेयर द फूड बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड तैयार करेगी, बदले में फंगस जो है उसको अपने ऊपर रहने की जगह देगी। मीन्स द फंगस इज प्रोवाइडिंग द शेल्टर, देन द एल्गी विल प्रोवाइड फूड और न्यूट्रिशन, देन दिस कंडीशन विल बी कॉल्ड लाइकेन। इन दोनों को मिलाकर के इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, लाइकेन। तो इट इज ए टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अदर टाइप ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वी विल टॉक लेग्यूम प्लांट्स। लेग्यूम प्लांट्स, लेग्यूम प्लांट्स की अगर हम बात करें तो लेग्यूम प्लांट्स विल हैव नोड्यूलेटेड रूट्स, यानी कि इनकी जो रूट्स होती है वो नोड्यूलेटेड होती है, गिठाने होती है इनके अंदर, और इन गिठानों के अंदर पर्टिकुलर स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट। द नेम इज राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, सच टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द नोड्यूलेटेड रूट्स ऑफ द लेग्यूम प्लांट्स। लेग्यूम प्लांट्स क्या होते हैं, जितने भी पल्सेज है, जितने भी दालें हैं जिस कैटेगरी में रखी जाती है उनको लेग्यूमिनेसी फैमिली है। और लेग्यूमिनेसी फैमिली की खासियत होती है कि इनकी जड़ें जो होती है वो गिठाने होती है, उनके अंदर गांठदार होती है, नोड्यूलेटेड होती है। उन नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। वो जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। प्लांट के लिए आप जानते हो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम तो उस प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है, बदले में प्लांट उसे रहने की जगह देता है। ठीक है, तो दीज आर द रिलेशनशिप्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिशन एंड द शेल्टर। दिस इज द टाइप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन, द टाइप, firstly we was talking about saprotropic nutrition, after that parasitic nutrition, after that holozoic nutrition. We have talked about the three conditions: herbivorous, carnivorous, omnivorous, and lastly we was talking about symbiotic relationship. These are the types of nutrition: autotropic nutrition, heterotropic nutrition. Now in the next lecture we will talk about the nutrition in green plants. In the next lecture we will talk about the nutrition in plants, and the phenomena which is responsible for the nutrition in plant is photosynthesis. It means we will talk about the photosynthesis in next class. Thank you.